Good morning, friends. Today we discuss Lebesgue theorem. This is most important theorem. देखो statement that f be an increasing real valued function defined on closed interval AB. Then f is differentiable almost everywhere, and the derivative f dash is measurable. And integration a to b f dash x dx is less than equal to f of b minus f of a. ये theorem का जो result है, यह हम पहले already use भी कर चुके हैं. f एक इंक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ab पे डिफाइंड है. तो हमने क्या शो करना है कि ये फंक्शन f जो है डिफरेंशिएबल होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मींस और उसका जो डेरिवेटिव होगा f डैश वो मेजरेबल होगा, और इंटीग्रेशन उस डेरिवेटिव का क्या है, लेस देन इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a. देखो इसका प्रूफ. लेट अस शो दैट सेट्स वेयर एनी टू डेरिवेटिव्स आर अनइक्वल हैव मेजर 0. क्या शो कर रहे हैं? वो सेट्स जहां दो डेरिवेटिव्स अनइक्वल हैं, उनका मेजर क्या है? 0. नाउ वी विल कंसीडर only the set A where d plus f of x is greater than d minus f of x. मींस उनका मेजर जहां डेरिवेटिव्स अनइक्वल है उनका मेजर 0 है. इसका मतलब डेरिवेटिव्स इक्वल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ठीक है, तो हम ये क्या कंसीडर कर रहे हैं? वी विल कंसीडर ओनली द सेट A. हम वो सेट A कंसीडर कर रहे हैं जहां d plus f of x greater than d minus f of x. The sets arising from other combinations of derivatives can be similarly handled. ऐसे और केसेस भी होंगे है ना, क्योंकि हमारे पास चार हैं, अपर राइट, अपर लेफ्ट और लोअर राइट, लोअर लेफ्ट. नाउ टू प्रूव, अब हमें क्या प्रूव करना है? ए सेट का मेजर क्या है? 0. सो डिफाइन टू रेशनल्स u एंड v with u less than b. Then the set AUV सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल दोस x for which d minus f of x less than u less than b less than d plus f of x. ठीक है, स्टूडेंट्स अब हमें क्या बात कर रहे हैं कि AUV हमने क्या सेट कंसीडर कर लिया कि वो उन पॉइंट्स का सेट जहां d माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, लेस देन है d प्लस एफ ऑफ एक्स, और इसके बीच में दो रैशनल्स लाई कर रहे हैं u और v. नाउ क्लियरली a कैन बी रिटन एज union of countable family AUV of sets where u and v vary over all the rationals. So in order to show that outer measure of A is equal to 0, it is sufficient to prove outer measure of AUV is equal to 0 for all AUV, for all u and v. Let outer measure of AUV is equal to alpha finite. Then outer measure finite है, तो हम क्या रिजल्ट लगा रहे हैं कि for given epsilon greater than 0 there exists an open set O containing AUV such that outer measure of O is less than outer measure of AUV plus epsilon. That is outer measure of O is less than outer measure of AUV. हमने क्या assume किया था? alpha, तो alpha plus epsilon. Let x be an arbitrary point of AUV, and since d minus f of x is less than u, ये तो है ही क्योंकि a सेट में हमने यही कंसीडर किया होगा. So we can find an arbitrary small interval x minus h x contained in O such that f of x minus h is less than uh. अब collection of all such intervals से C form a Vitali cover of AUV. जो ऐसे सब intervals की collection आएगी वो क्या form करेगी? AUV का Vitali cover. Then by Vitali covering lemma there is a finite subcollection of disjoint intervals from C such that outer measure of AUV minus union of II is less than epsilon. Result लगा दिया हमने Vitali covering lemma से. Where II जो intervals हैं, closed intervals हैं, xi minus hi comma xi, where I varying from 1 to n. Now summing over all these n intervals, in intervals को ओवर हमने sum किया, तो क्या आ गया? Summation f of xi minus f of xi minus hi is less than summation u hi. Now u is independent of summation. Summation से बाहर, summation में क्या आ गया? Summation of hi, and it is less than outer measure of O. And outer measure of O is further less than alpha plus epsilon. Now let us define a set T. हमने एक set define किया. क्या define किया? AUV intersection union of interior of II. ये step आपको याद रखना है कि सेट E क्या डिफाइन किया गया है. Let y belongs to E. Y हमने कोई पॉइंट ले लिया E का. Then y belongs to AUV. अगर E से बिलोंग कर रहा है तो AUV से बिलोंग कर रहा है. Then y belongs to interior of II. And B क्या था हमारे पास? सेट A में जो हमने डिफाइन किया था, B is less than d plus f of y. Then we can find a small interval. हम एक small interval find out कर सकते हैं y plus k which is contained in I for some I such that f of y plus k minus f of y is greater than k. अब ये काम हमने E के हर सॉरी E के हर पॉइंट के लिए करना है. तो हमें क्या मिल जाएगा? ऐसे करते करते एक बिटाली कवर मिल जाएगा E का, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C स्टार से.
आउटर मेजर ऑफ ई हमें क्या गिवन है, लेस देन इन्फिनिटी है, तो हम विटाली कवरिंग लेमा अप्लाई कर रहे हैं। तो विटाली कवरिंग लेमा से हम क्या मिल जाएगी, एक फाइनाइट सब कलेक्शन आ जाएगी हमारे पास डिसजॉइंट इंटरवल्स की सी स्टार से, सच दैट आउटर मेजर ऑफ ई माइनस यूनियन ऑफ जे आई इज लेस देन एप्सिलॉन, वेयर जे आई क्या है, जे आई आर द intervals of this type yi plus ki. Now since outer measure of E is greater than alpha minus epsilon, so it follows that outer measure of E intersection union of ji is greater than alpha minus 2 epsilon. ठीक है, अब हमने क्या किया, नाउ समिंग ओवर ऑल दीज m intervals, हमने सम किया तो क्या आ गया, समेशन f of yi plus ki minus f of yi, this is greater than summation ki v. Now v is independent of summation, summation से बाहर, और समेशन की ai this is greater than alpha minus 2 epsilon, ये आप देख सकते हो, ये सोल्व किया हुआ है। अब हर जे जो था वो आई में कंटेन है, तो हर फिक्स्ड आई के लिए हमने किसके ऊपर सम करना है, ऑल दोस जो जे फॉर विच जे इज कंटेन्ड इन आई, हमने सम किया उनके ओवर, तो हमें क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई जे प्लस के जे माइनस एफ ऑफ वाई जे, दिस इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच आई, क्योंकि जो समेशन हुआ है वो इंटरवल्स जे के ऊपर हुआ है, आई के ऊपर नहीं हुआ है। एंड समिंग द राइट हैंड साइड ऑफ द अबव ओवर आई, अब राइट साइड को हमने सम कर दिया ओवर आई, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, वैल्यूज डाल दी हमने, so this implies u into alpha plus epsilon is greater than this sum, and this is greater than equal to summation f of yj plus kj minus f of yj, which is further greater than इक्वेशन 2 और 4 से क्या आ गया, v into alpha minus 2 epsilon, ठीक है, but epsilon greater than 0 is arbitrary, so u alpha is greater than equal to v alpha in limiting case, if alpha is not equal to 0 and alpha is greater than 0, so this implies u is greater than equal to v, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे, u is less than v, so alpha is 0, alpha 0 का मतलब outer measure of AUV is 0, this implies Dini's derivatives are equal almost everywhere, Dini's derivatives equal है almost everywhere का मतलब फंक्शन f जो है डिफरेंशिएबल है almost everywhere, thus we have established that फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन का डेरिवेटिव जिसको हमने gx से डिफाइन किया है, ये हमारा डिफाइन था ऑलमोस्ट एवरीवेयर, क्योंकि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, फंक्शन f is differentiable whenever gx is finite. Now let us define g and x, हमने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, देखो जैसे हमने gx डिफाइन किया था ना, ये सेम पैटर्न पे हम g and x डिफाइन कर रहे हैं कि f of x plus 1 by n minus f of x divided by 1 by n, ताकि हम इसकी लिमिट लें तो हमारे पास g मिल जाएगी, h की जगह 1 by n, h और n में रेसिप्रोकल इनवर्स रिलेशन है, मींस h is equal to 1 by n है, अगर h 0 को टेंड करेगा तो n हमारा इंफिनिटी को टेंड करेगा। अब हमने क्या सेट कर दिया, सेट f of x equal to f of b for x greater than equal to b, x अगर greater than equal to b है तो उसके लिए f of x की वैल्यू क्या सेट कर दी हमने, f of b सेट कर दी, नाउ टेकिंग लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी g and x, लिमिट लिया तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f of x plus 1 by n minus f of x divided by 1 by n, नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो h हमारा 0 को टेंड करेगा, एंड दिस इज इक्वल टू g of x ऑलमोस्ट एवरीवेयर, and gn is greater than equal to 0, ये फंक्शन f कैसा है, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f of x plus h is greater than f of x आएगा हमारे पास। दस सीक्वेंस gn जो हमारे सीक्वेंस बने इस तरीके से, इस सीक्वेंस कैसी है, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस है जो g को कन्वर्ज कर रही है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब यहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं फातुलेमा, फातुलेमा से हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ g इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर इंटीग्रेशन ऑफ gn, नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर इंटीग्रेशन gn की हमने यहाँ वैल्यू डाल दी, दिस इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर एंड f of x फर्स्ट इंटीग्रल एज इट इज है, जो सेकंड है f of x, इसको हमने किससे कैसे लिखा है, देखो ये सेपरेट करके जस्ट हमने लिखा हुआ है। अब हमने फर्स्ट इंटीग्रल में x को क्या ये x plus 1 by n जो आर्गुमेंट है इसको क्या पुट किया है, t पुट किया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ g का इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर एंड इनटू क्या बन गया, ये a plus 1 by n लिमिट्स चेंज हो गई, b plus 1 by n माइनस इंटीग्रेशन a to b, नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर एंड a plus 1 by n b plus 1 by n f of x माइनस, अब जो ये हमारे पास इंटीग्रल था a to b, इसको हमने ब्रेक करके कैसे लिखा, a to a plus 1 by n माइनस a plus 1 by n to b, ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर एंड ये क्या बन गया, अब इसको हमने कंबाइन किया फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट है a plus 1 by n से b plus 1 by n, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया a plus 1 by n से b, तो क्या बचा हमारे पास b to b plus 1 by n, और ये क्या है a to a plus 1 by n,
ठीक है। अब ये b टू b प्लस 1/n हमने क्या सेट किया था कि जो f ऑफ x अगर हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू b है तो f ऑफ x हमारा f ऑफ b था। अब ये हमारा b टू b प्लस 1/n है, मींस ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो f ऑफ t क्या बन गया, f ऑफ b, एंड f ऑफ b इज कांस्टेंट व्हिच इज कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर, तो इंटीग्रेशन तो किसका हुआ, dt का, मींस t, और जब लिमिट्स पुट करेंगे तो b प्लस 1/n माइनस 1/n, तो क्या बच गया f ऑफ b बाय n माइनस सेकंड इंटीग्रल आपका एज इट इज है। नाउ दिस इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस माइनस साइन जब बाहर आएगा तो लिमिट इंफीरियर का क्या बन जाएगा, लिमिट सुपीरियर बन जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये हमने यहाँ करके दिखाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। ये फंक्शन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन है, फाइनाइट वैल्यू आएगी, सो लेस देन इन्फिनिटी। इसका मतलब फंक्शन जी कैसा है, इंटीग्रेबल है, एंड हेंस जी इज फाइनाइट वैल्यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो f डैश x एग्जिस्ट कर रहा था ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और f डैश x किसके इक्वल था, gx के, और उसका तो इंटीग्रेशन है a टू b f डैश x किसके इक्वल आ गया, लेस देन इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थ्योरम है, if f is absolutely continuous on closed interval ab and f dash x is 0 almost everywhere in closed interval ab, then function f is constant। ये हमें पता है अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हर जगह नहीं है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर 0 है, और साथ में एक कंडीशन और है हमारे पास कि फंक्शन f जो है वो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस है। तो हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि फंक्शन f कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। देखो इसका प्रूफ, let's see any point of closed interval ab, then if we prove f of c is equal to f of a, then the result is true, हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। मतलब हर पॉइंट पे वैल्यू क्या हो जाएगी, f of a के इक्वल है। तो हमने क्या डिफाइन किया, e हमने क्या डिफाइन किया, let e be a set consisting of all those points of the interval ac where f dash x is 0। e हमने वो पॉइंट्स ले लिए ac इंटरवल के जहां फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। मेजर ऑफ e इज इक्वल टू इंटरवल c माइन, ये क्या आएगा, e का मेजर इस इंटरवल AC का मेजर उससे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, बल्कि तो क्या हो जाएगा, एट मोस्ट C माइनस A व्हिच कैन बी रिटन एज मेजर ऑफ इंटरवल AC। अब हमने दो नंबर्स कंसीडर किए एप्सिलॉन एंड ईटा, आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स हैं। देन टू ईच x belonging to E there is an arbitrary small interval x x plus h which is contained in interval AC such that mod of f of x plus h minus f of x is less than eta h। फंक्शन को क्या है, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस, उसकी डेफिनेशन हमने यूज की है। The set of all such intervals form a Vitali cover of A। ऐसे हर सच इस तरीके के इंटरवल्स के हम कलेक्शन ले लें तो वो क्या बनाएगी का Vitali cover। Hence by Vitali covering lemma from these intervals we can choose a finite subcollection of disjoint intervals which cover all of E except for a set of measure less than delta, where delta greater than 0 is a number corresponding to epsilon greater than 0 in the definition of absolute continuity of function f। क्या कह रहे हैं हम कि विटाली कवरिंग लेमा से कि इन इंटरवल्स से हम क्या चूज कर सकते हैं, फाइनाइट कलेक्शन चूज कर सकते हैं डिस्जॉइंट इंटरवल्स की जो पूरे ई को कवर कर रही है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक सेट को छोड़ के जिसका मेजर क्या है, लेस देन डेल्टा है। ठीक है, और डेल्टा ग्रेटर देन 0 क्या है, एक नंबर है कोरिस्पोंडिंग टू एप्सिलॉन, किस डेफिनेशन में, इन डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट क्वांटिटी ऑफ फंक्शन f। अब हम क्या लेबल कर रहे हैं, इफ वी लेबल xk सो दैट xk इज लेस देन xk प्लस 1 देन वी हैव, अगर हम xk को इस तरीके से लेबल करें कि xk लेस है xk प्लस 1 से, यानी मतलब x1 लेस देन x2 लेस देन x3 एंड सो ऑन, तो हमने देखो जैसे आप पार्टीशन के पॉइंट्स देते हो ऐसे ही हमने ये लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड सो ऑन xn yn। yn जो है वो c और x1 जो सॉरी जो हमारा y नोड है वो a है, y नोड से yn। ठीक है, इंटरवल AC में पॉइंट्स लिए ये हमने, और C क्या है हमारा xn प्लस 1। सो x1 माइनस y नोट, देखो x1 में से y नोट सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे ही x2 में से y1 x3 में से y2 और इन सब के मोड का सम, ये क्या है, लेस देन डेल्टा। एंड समेशन मोड xk प्लस 1 माइनस yk, इसको हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा, दिस इज लेस देन डेल्टा। अब ये लेस देन डेल्टा है तो एब्सोल्यूट क्वांटिटी की डेफिनेशन से इस पे f अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब ये सम लेस देन डेल्टा कैसे कह रहे हैं हम, लेस देन डेल्टा, देखो हमने ऊपर कहा था कि जो ये हमारे पास कलेक्शन थी इंटरवल्स की, ये पूरे ई को कवर करेगी, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर अ सेट ऑफ मेजर लेस देन डेल्टा, उन कुछ पॉइंट्स को छोड़ के, क्योंकि देखो वही तो पॉइंट्स हमने ये उन्हीं को ही तो हटाया है, x1 में से y नोट हटाया है, x2 में से y नोट, बाकी तो इंटरवल के वही पॉइंट्स चल ही रहे हैं आपके, तो इनका मेजर जो है लेस देन
डेल्टा है। यहाँ एब्सोल्यूट कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से आप अप्लाई करें तो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। आल्सो बाय द वे द सीक्वेंस एक्स के वाई के मींस जो अगर हम सीक्वेंस ले लें इंटरवल्स की वर कंस्ट्रक्टेड समेशन mod f of y के माइनस f of x के दिस इज लेस देन समेशन eta mod y के माइनस x के। ठीक है, दिस इज इक्वल टू eta समेशन y के माइनस x के, और ये सम क्या है लेस देन c माइनस a, है ना, क्योंकि ये तो उसके बीच के पॉइंट को छोड़ के उनका डिफरेंस चल रहा था और ये टोटल इंटरवल जो था उसकी लेंथ है ये। तो मोड एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, सी और ए की वैल्यू हमने डाल दी, सी एक्स एन प्लस वन, ए क्या है हमारा वाई नॉट। नाउ दिस इज इक्वल टू मोड समेशन के वेरिंग फ्रॉम 0 टू n एक्स के प्लस वन माइनस वाई के वाले पॉइंट्स और वाई के माइनस एक्स के, तभी तो वो पूरा इंटरवल बनेगा आपका ए टू सी। Now mod a plus b is less than equal to mod a plus mod b वाला रिजल्ट लगा। फर्स्ट लेस देन एप्सिलॉन, सेकंड लेस देन eta into c minus a। ये आर्बिट्ररी नंबर्स हैं, तो लिमिटिंग केस में वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 0 का मतलब f of c f of a, इसका मतलब फंक्शन f क्या है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। हमें यही प्रूव करना था, ये इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट भी। Corollary है if derivatives of two absolutely continuous functions are equivalent, अगर दो absolutely continuous functions के derivatives equivalent है, equivalent का मतलब equal है almost everywhere, then function differ by a constant, तो function जो है वो एक constant से differ करेंगे, उनमें difference एक constant का होगा। तो क्या कह रहे हैं कि अगर f और g दो absolutely continuous functions हैं जो closed interval ab पे defined है, such that f dash and g dash are equivalent, तो derivatives equivalent है, that is f dash equal to g dash almost everywhere। तो इसका मतलब f dash minus g dash क्या हो गया 0 almost everywhere, where f minus g कैसा फंक्शन है एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस, क्योंकि f और g दोनों ही एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस, तो उनका डिफरेंस भी एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस। तो ऊपर वाली थ्योरम यूज करो, ऊपर जो फंक्शन f था उसकी उस फंक्शन f को रिप्लेस कर दो f minus g से, कि f minus g एक एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 0 है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो वो फंक्शन क्या होगा f minus g क्या होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, हमें यही प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा यूनिट जो है 4 ये कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं कुछ भी डाउट है देन